what happened? The axonal membrane is more permeable to potassium ions and impermeable to the sodium ions. पर जैसे ही इम्पल्स मिलेगा, जैसे स्टिमुलेशन मिलेगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा. Also, the membrane is impermeable to negatively charged proteins in the exoplasm. Okay. So therefore, potassium and negatively charged protein in the exoplasm is high and concentration of sodium is low. Where? In the exoplasm, inside it. The fluid outside the exoplasm कैसा है? Positive है ना? Yes. क्यों? क्योंकि वहां पे लो पोटेशियम है और हाई सोडियम है, इसके वजह से वो पॉजिटिव है. बाहर पॉजिटिव होता है ना रेस्टिंग कंडीशन में, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव. ओके. Ionic gradients are maintained by the active transport of the sodium and potassium pump. कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? It transports 3 sodium outward for 2 potassium into the cell. And therefore, बाहर is positive, outer is positive and the inner is negative. जब भी इलेक्ट्रिक डिफरेंस रहेगा, ऐसा रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल. ओके. एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होगा? जब भी कोई स्टिमुलस मिलेगा. यस. जब भी कोई स्टिमुलस मिलेगा तभी एक्शन पोटेंशियल रहेगा, उसके पहले रेस्टिंग पोटेंशियल रहेगा. ओके. अभी समझो स्टिमुलस मिला, अब क्या होगा? सोडियम अंदर की तरफ जाएगा. यस. जिससे क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा, क्योंकि पहले रेस्टिंग पोटेंशियल को हम पोलराइजेशन बोलते हैं. फिर क्या होगा? ये जो डीपोलराइजेशन है, it will propagate through the plasma membrane through the action potential. You can see that it is shown with a dark red and a light pink color. So it is propagating. ऐसे आगे 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 वो बढ़ते जाएगा like this. यहाँ से यहाँ तक इसको पहुंचना है, ठीक है, with the help of this action potential. So sequence of polarization, depolarization and repolarization will take place. Again with a diagrammatic form. This again you have seen in the last class in the video. Yes, आप देख सकते हो यहाँ पे पोलराइजेशन स्टेट है, फिर वापस ये ऐसे आगे जा रहा है, अगेन पीछे से पोटेशियम आ रहा है, ये वापस बाहर पॉजिटिव होते जा रहा है. देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाले में फर्क है. तो ऐसे 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 पास ऑन होता है. इट इज द करंट इज फ्लोइंग from, they have shown with the help of this B and A side, so it is flowing. It is just a revision to all of you. Okay, in the synaptic transmission there is a chemical transmission, correct है? In between the synapse there is a chemical transmission. तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? synaptic vesicles होते हैं. synaptic vesicles किसके वजह से स्टिमुलेट होते हैं? with the help of calcium ions, as I've told you. Yes, calcium ions के मिलते ही, see this diagram I've explained you. calcium ions के आते ही ये जो वेसिकल्स है ये बर्स्ट हो जाएंगे, और बर्स्ट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एसिटाइल कोलिन has been released. It can be acetylcholine or it can be adrenaline. Both are the neurotransmitters. So these vesicles are filled with the neurotransmitter. What are that neurotransmitter? Either it can be acetylcholine or it can be adrenaline. So please note down the name of the neurotransmitter. So you can have a screenshot how the chemical synapse take place. From the axonic terminal to the vesicle. Vesicles में से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, वो क्लेफ्ट में जाएगा. क्लेफ्ट मतलब ये बीच का जो जगह है उसको क्लेफ्ट बोलते हैं हम. फिर पोस्ट में जाएगा और फिर क्या होगा? allowing the entry of ion and generating up action potential. You can take a screenshot of it कि how the chemical synapse is passing from where to where. Taken all of you?
Now, today we are going to learn about the human neural system. No doubt, in the neural human system, I've already taught you about the meninges. Do you remember meninges? What is meninges? Anyone of you unmute and tell me what is meninges? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाला आउटर टिश्यू को हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं. Very good. Okay, the brain and spinal cord has been covered by a protective connective tissue, and the name of that connective tissue is the meninges. Yes, लास्ट लेक्चर उस फर्स्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि meninges के 3 लेयर्स होते हैं. Yes, they are dura mater, arachnoid matter and the pia matter. Dura and arachnoid के बीच में there is a space called as a subdural space filled with a serous fluid. Similarly, between the arachnoid and the pia mater, there is one more space called as a subarachnoidal space filled with a fluid called as a CSF. What is the full form of the CSF? The full form of CSF is cerebrospinal fluid. इसके बारे में हमने डिटेल में भी पढ़ा था, which can be asked as a question in the board exam. You write down the functions of CSF or uses of CSF. So we have learned that there are many uses of the CSF. It will act as a shock absorber, mechanical injury से बचाता है, pressure maintain करता है, temperature maintain करता है, yes, nutrients का ये करता है, desiccation से बचाता है. तो we have learned many of the functions of the CSF. Now, next we are going to learn about the neural system. Our neural system has been basically divided into 3 parts, but here you can see only 2 parts. Actually, it has been divided. Wait, I will share a new one. It is divided into 3 parts. As all of you can see now, central nervous system, peripheral nervous system and the autonomous nervous system. No doubt, in short, I have discussed about it. Central nervous system क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड. पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्व्स बाहर आ रहे हैं और हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी के पेरीफेरी में जा रहे हैं, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज अ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है. एन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एज इट इज वर्किंग ऑटोनोमस, खुद से वर्क कर रहा है. ठीक है. उसके पास खुद के हॉर्मोन्स होते हैं. ठीक है. और वो खुद से काम करता है, बट नो डाउट इट इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. So I request all of you to take again a screenshot of it, and you have to learn all these things in particular lesson. Please by heart it just now. So the human nervous system में CNS, PNS, ANS. CNS is made up of brain and spinal cord. Brain is divided into 3 regions as the forebrain, midbrain and the hindbrain. Whereas the PNS is divided into cranial nerves, the nerves which are arising from brain. Spinal nerve, the nerves which are arising from the spinal cord. And ANS made up of sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. तो पहले हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. Infection to this meninges is called as meningitis. Meningitis. So these are the functions of CSF. Which one secretes the CSF? It is secreted by the choroid plexus and the ependyma cells. Choroid plexus क्या है? Ependyma cell. As I've told you, I will discuss afterwards when it will come in the next part. बट ये याद रखो, इट इज सिक्रेटेड बाय द कोरॉइड प्लेक्सस एंड द प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क. ठीक है.
So choroid network or a choroid plexus and the ependyma cells. What is the study of brain called as? Study of brain is called as encephalology, because brain is also called as encephalon. Brain is also called as encephalon. E is silent over here. So encephalon. So study is called as the encephalogy. We know that our brain is our brain is inside a brain box which we call as a cranium. Now again I request all of you to take a screenshot and you have to remember all these names. मुझे अभी के अभी I'm giving you 5 minutes time. Try to remember. Forebrain, midbrain, hindbrain. But forebrain is also called as pro मतलब पहले prosencephalon. Mid मतलब बीच में mesencephalon. Hindbrain also called as rhombencephalon. Forebrain is again divided into 3 regions. What are they? Olfactory lobe, which is also called as a renencephalon. Please don't get confused between the rhomben and renin. Renin मतलब olfactory lobes. Telencephalon का मतलब होता है cerebrum and diencephalon. So forebrain made up of olfactory lobe, also called as renencephalon, cerebrum called as telencephalon, and the diencephalon. Whereas midbrain is divided only in 2 parts, that is a cerebral cortex भी बोल सकते हैं या cerebral peduncle भी बोल सकते हैं या फिर crura cerebri भी बोलते हैं. इसको 3 नाम से जाना जाता है. I request all of you to write down on the paper. Please write down, because memorization करोगे तो भी भूल जाओगे क्योंकि थोड़ा नाम difficult है. I will give you 5 minutes time. Please note down this particular part in your notebook. And the next one is corpora quadrigemina. Hindbrain is again made up of 2 parts. Cerebellum and metencephalon made of cerebellum, pons viroli, and myelencephalon made up of medulla oblongata. So in this particular lesson, we have to learn all these parts. I will give you 5 minutes time. Please copy down fast with the medical terms. हो जाएगा तो प्लीज एनीबडी ऑफ यू अनम्यूट मी एंड टेल मी. आपका लिख के हो जाएगा तो प्लीज शो मी एंड अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी कि हो गया.
यस, लिख के हो गया सबका? यस और नो? यस। 2 मिनट नो अभी भी है? नो किसी का? मैम, जस्ट 2 सेकंड्स दो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ मैम, हो गया। ठीक है, तो अभी आप कहाँ से शुरू करेंगे? वी विल बी स्टार्टिंग विद द फोर ब्रेन। यस, प्रोसेंसेफेलॉन का लेट अस लर्न द फर्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब, फिर हम सेरिब्रम पढ़ेंगे और फिर हम डायंसेफेलॉन पढ़ेंगे। सो वी विल गो स्टेप वाइज। So the prosencephalon is made up of olfactory lobe, which is also, just now you have written, it is also called as a rhinencephalon, telencephalon and the diencephalon. So let us discuss first about this olfactory lobe. So you can see the diagram where the olfactory lobe has been present. आप देख सकते हो अभी diagram में, तो you can imagine how it has been present. तो सबसे पहला बात, the olfactory lobe is हाईली रेड्यूस्ड, बहुत ही छोटा सा पार्ट है इन ह्यूमन ब्रेन। सिर्फ अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे तो हमारे कंडीशन में ये जो ऑल्फैक्टरी लोब है वो काफी रेड्यूस्ड है। यस, नाउ सब जगह से पूरी तरह से रेड्यूस्ड है, सिर्फ वेंट्रल के साइड में। सी, दिस इज द वेंट्रल साइड, दिस इज द डॉर्सल साइड ऑफ अवर बॉडी। जहां पे अपना फेस होता है उसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। तो वेंट्रल साइड में थोड़ा सा बल्जी है, बाकी का पूरा एकदम पतला है। यस, नाउ व्हेन वी सी अबाउट दिस olfactory lobe, it is made up of two things. ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज olfactory bulb, जिसको मार्किंग किया गया है। और ये जो पतला सा डंडा दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज olfactory tract. Yes, just a minute, I can do the annotation or what. Okay, आज annotation ऑफ ही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यू कैन सी दिस येलो कलर स्ट्रक्चर में ये जो swollen पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज olfactory bulb। और ये जो दूसरा पार्ट है जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज olfactory tract। ट्रैक्ट को हम पेडेंकल भी बोल सकते हैं। olfactory ट्रैक्ट को ही पेडेंकल भी बोला जाता है। तो either you can say that each lobe, there are pair of lobe, दो lobes होते हैं, it is paired organ। हाँ, again I'm repeating, olfactory lobe is a paired, it is small, it is solid organ which is present ventrally in the forebrain. Yes, it is made up of two parts. Please note down, olfactory bulb and the olfactory tract. ट्रैक्ट को ही अब आप पेडंकल भी बोल सकते हो, olfactory bulb and olfactory peduncle भी बोल सकते हो। ठीक है, olfactory bulb, as you all can see, it is very small in size, and olfactory tract, you can see that it is going somewhere, it is merging somewhere. So what is that somewhere? It is merging in our temporal lobe. I will be teaching you what is this temporal lobe. बट अभी के लिए याद रखो कि ये जहाँ पे मर्ज हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इसको हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं, जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ। ठीक है, सो olfactory ट्रैक्ट के बारे में या olfactory peduncle के बारे में आप क्या बताओगे? It is merging into the temporal lobe. टेम्पोरल लोब में वो मर्ज कर रहा है। ठीक है, फंक्शन क्या है ये olfactory लोब का? Olfactory lobe is concerned with sense of smell. Sense of smell. As in case of human being, the olfactory bulb is very small in size, so our sense of smell is poorly developed. Yes, इतना अच्छा develop नहीं है, it is poorly developed. ठीक है, this olfactory bulb is quite large in case of dog and the shark fish. Yes, डॉग एंड द शार्क फिश में ये काफी बड़ा होता है, इसलिए उनका सेंस ऑफ स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग होता है। डन ऑल ऑफ यू? एक पढ़ के हो गया सबका olfactory lobe का? प्लीज नोट डाउन whether you have noted all these things. Olfactory lobe is a paired organ. It is small, it is solid and present ventrally in our forebrain. Done?
It is made up of olfactory bulb and olfactory peduncle or olfactory tract also you can see. Next point what I've told you, the function. As in case of human being, the olfactory bulb is very small in size, so the sense of smell is poorly developed. Okay, done. Now let us learn about the next very important part and which is occupying the largest part of the brain, that is the cerebrum. हमारा पूरे ब्रेन में सबसे ज्यादा जो एरिया है of brain is occupied by the cerebrum and therefore it is called as the largest part of brain. Almost 80% of our brain is nothing but this cerebrum. ठीक है, बाकी 20% में और बाकी के सारे पार्ट्स आते हैं. हाँ, and 80% of our brain is nothing but the cerebrum. It is divided into, our cerebrum is divided into left and right. Cerebral hemisphere. If you all seen the walnut बोलो या अखरोट बोलो, वैसा ही हमारा ब्रेन दिखता है, सेम. तो आप देखोगे जब आपने वॉलनट देखा होगा कि वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है और बीच में उसके कनेक्शन होता है. तो जो आधा पार्ट है ना उसको हम क्या बोलते हैं, आधे को क्या बोलते हैं, आपने ज्योमेट्री में आपके लोअर क्लासेस में पढ़ा, इट इज कॉल्ड एज अ हेमिस्फीयर. सो द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू हाफ पार्ट एंड दैट हाफ पार्ट इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट cerebral hemisphere and right cerebral hemisphere. No doubt, both the hemispheres are being connected to each other with the help of a thick nerve band. And the name of the nerve band is very important, corpus callosum. Please underline and note down. Both the cerebral hemispheres are connected by means of corpus callosum. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अभी मुझे पूछोगे कि मैम ये जो लेफ्ट और राइट सेरिब्रम में जो डिवाइड हुआ है तो क्या वो कोई वॉल से डिवाइड हुआ है या फिर कोई डिप्रेशन से डिवाइड हुआ है. तो एज आई टोल्ड यू, जैसे आपने वॉलनट में देखा है तो बीच में कोई दीवार नहीं होती है, बीच में क्या होता है, डिप्रेशन होता है. डिप्रेशन के कारण दो लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं. तो डिप्रेशन को बायो में फिशर भी बोला जाता है, फिशर. तो व्हाट आई कैन से, द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज बीन डिवाइडेड बाय मींस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल फिशर, अ डीप मीडियन लॉन्ग फिशर. बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर are divided by means of a very deep median, मतलब बीच में long या फिर longitudinal fissure, and both the hemispheres are connected by the corpus callosum. I hope this part, second point is done. Next point, when we see the regions, the outer surface of the cerebrum is called as the cortex. जैसे हमने किडनी में पढ़ा था तो आप उसको क्या बोलोगे, cerebral cortex. सिमिलरली जो अंदर वाला रीजन है, अंदर वाला जो रीजन है सेरिब्रल का, उसको हम क्या बोलेंगे, मेड्यूला. तो दैट विल बी कॉल्ड एज द सेरिब्रल मेड्यूला. यस, आउटर रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, and the inner deep region is called as a medulla or the cerebral medulla. Next important point which I wanted to add over here, the cerebral cortex is made up of gray matter, whereas the medulla is made up of white matter. So please note down, cortex is made up of gray matter and medulla is made up of white matter. Done? Okay. When we talk about this cortex region, in the cortex region we can see many folds. ऐसे बहुत सारे फोल्ड्स नजर आएंगे, बहुत सारे कन्वल्शंस नजर आएंगे. हाँ, वो फोल्ड्स को बोला जाता है गायराए. फोल्ड्स को गायराए नाम देंगे हम. और साथ साथ में छोटे छोटे ग्रूव्स या छोटे छोटे डिप्रेशंस भी नजर आएंगे हमें. कुछ बड़े डिप्रेशंस भी होते हैं और छोटे डिप्रेशंस भी होते हैं.
तो जो छोटे छोटे ग्रूव्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सल्काई। ठीक है, so folds are called as gyri and depression or grooves are called as the sulci. मिस वो कॉन्वोल्यूशन क्या? folds convolutions का मतलब होता है folds। ठीक है, करेक्ट है। okay, now one more point I will add over here as the जितना ज्यादा folds रहेगा, जितना ज्यादा convolutions रहेगा हमारे cerebral cortex में, उतना ज्यादा वो इंसान इंटेलिजेंट रहेगा। करेक्ट है, बिकॉज जितना ज्यादा फोल्ड या जितना ज्यादा कॉन्वोल्यूशंस रहेगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। करेक्ट है, जैसे एक बहुत बड़ी सी रस्सी है, वो रस्सी बहुत बड़ी सी है पर आपने उसको गुंडाल के बहुत एक छोटे से कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर दिया, गॉट इट, बट वो रस्सी का सरफेस एरिया बड़ा है ना। सेम लाइक दिस ऑल्सो, कि जितना ज्यादा फोल्ड्स रहेगा मतलब उतना ज्यादा सरफेस एरिया है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया है दैट मीन्स द पर्सन इज दैट मेनी टाइम्स मोर इंटेलिजेंट, और उतना सरफेस एरिया है मतलब उतना सारा नर्व सेल्स होंगे, है ना। तो ज्यादा नंबर ऑफ नर्व सेल्स मीन्स ज्यादा इंटेलिजेंस। इज इट वेरी क्लियर? ठीक है, गॉट इट ऑल ऑफ यू? सो gyri decides the intelligence of a person. Please note down. Gyri decides the intelligence of a person. You can see this part now. Now the things will be more clear to you. Again I will explain you. ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है इसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल फिशर है जिसके कारण ये दो लोब्स में डिवाइड हो गया है, एज लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट व्हाट आई हैव टोल्ड यू, द बोथ आर बीन कनेक्टेड बाय मींस ऑफ कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो अंदर वाला हिस्सा है उसे मेडुला बोलते हैं। आप देख सकते हो कॉर्टेक्स में बहुत सारे फोल्ड्स नजर आ रहे हैं ना, फोल्ड्स बोलो या कॉन्वोल्यूशंस बोलो, टेढ़े मेढ़े ऐसे फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, यही फोल्ड्स को हम gyri बोलते हैं। और छोटे छोटे डिप्रेशंस नजर आ रहे हैं फोल्ड के साथ साथ, है ना। जब कोई चीज फोल्ड होगा तो छोटे छोटे डिप्रेशंस होंगे कि नहीं होंगे? यस होंगे, श्योरली होंगे जब हम कोई चीज को फोल्ड करेंगे तो जो छोटे छोटे डिप्रेशंस नजर आ रहे हैं उसे हम सल्काई बोलते हैं। कुछ बड़े बड़े सल्काइज भी हैं हमारे सेरिब्रम में, दैट वी विल बी लर्निंग। ओके, नेक्स्ट something extra also I will tell you. If you want you can note down. The roof of the cerebrum is called as a pallium. Pallium. The ventrolateral part, this is the ventral and this is the lateral. The ventrolateral part of the cerebrum is called as a corpora strata. Okay. Now हमारा जो cerebral cortex है ना, इसके अंदर कुछ बड़े बड़े sulcus भी हैं। 3 deep sulcus है, 3 deep. So write down. In the cortex there are 3 big or deep sulcus. Big नहीं बोल सकते, deep बोलेंगे। 3 deep और major sulcus हैं। sulcus बोलो या sulci बोलो, जिसके कारण ये 3 बड़े बड़े डिप्रेशंस के कारण हमारे सेरिब्रम के 4 लोब्स बन गए हैं। हेलो मैम। हाँ बोलो मैम, वो आपने बोला था ना, अभी बोला था, वो वापस बोलो ना। क्या? मैम वो एक्स्ट्रा आपने 2 पॉइंट बोला था। अच्छा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, अच्छा अच्छा, इट इज नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक, मैंने ऐसे सिर्फ मेंशन किया था। द रूफ ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड एज पैलियम। The ventrolateral part of cerebrum is thick and it is called as a corpora strata. ठीक है, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको एक्स्ट्रा बोला है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। नाउ कम बैक टू द टेक्स्ट बुक। अच्छा, टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 मेजर सल्काए हैं, 3 मेजर सल्काए हैं, जिसके कारण 4 लोब्स बन गए हैं। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, 3 सल्काए के कारण, 3 ग्रूव्स के कारण 4 लोब्स बन गए हैं।
कौन कौन से लोब्स हैं? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। आप अपने फोरहेड को टच करो, फोरहेड को टच करो। जब आप फोरहेड को टच करोगे दैट इज योर फ्रंटल लोब। यस, देखो मैं जहां पे कर्सर मूव कर रही हूं ये पूरा पार्ट इज द पैराइटल लोब। सर के ऊपर हाथ रखो, सर के ऊपर हाथ रखो, दिस पार्ट इज द पैराइटल लोब। कान के ऊपर हाथ रखो, कान के ऊपर हाथ रखोगे दिस विल बी योर टेम्पोरल लोब, कान के ऊपर। आंखों के पीछे, आंखों के पीछे इज द ऑसिपिटल लोब। So I hope you can understand the position. आपका फोरहेड पे हाथ रखोगे, वो जो पार्ट है ब्रेन का दैट इज फ्रंटल लोब। जब आप सर के ऊपर हाथ रखोगे तो पैराइटल लोब। कान के ऊपर जो रीजन है दैट इज अ टेम्पोरल लोब। एंड आंखों के जस्ट पीछे के साइड में, नीचे वाला ब्रेन नहीं, ऊपर, मतलब आंखों के जस्ट पीछे ऊपर वाला हिस्सा इज द ऑसिपिटल लोब, पीछे का। कौन कौन से 3 सल्कस है? तो ऐसे मैं आपको डायग्रामेटिक यहाँ पे दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको ब्रेन में समझाऊंगी कि कैसे दिख रहा है और किसके कैसे 4 लोब्स बने हैं। देखो, तो अगर हम पहले सल्कस का नाम देखेंगे तो इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल सल्कस। प्लीज नोट डाउन, राइट डाउन 3 sulci at the center of your page, 3 sulci at the center of your page। उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। किया 3 पार्ट में डिवाइड। फर्स्ट ब्रांचिंग में लिखो सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस के नीचे लिखो सेपरेटिंग फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब। सबके अंदर पैराइटल कॉमन रहेगा। सेंट्रल सल्कस इज सेपरेटिंग फ्रंटल एंड पैराइटल। तो कैन यू इमेजिन वेयर इट कैन बी? फ्रंटल मैंने आपको क्या बताया बेटा? आपका फोरहेड। पैराइटल मैंने आपको क्या बताया? जहां पे आप सर पे हाथ रखते हो। तो उन दोनों के बीच में जो सल्कस है, जो ग्रूव है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल सल्कस। आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? यस और नो? Yes. ओके, तो सेंट्रल सल्कस के वजह से 2 लोब्स बने हैं। सेंट्रल सल्कस के वजह से 2 लोब सेपरेट हुए हैं, फ्रंटल एंड पैराइटल। ठीक है, चलो सेकंड ब्रांचिंग में लिखो। सेकंड ब्रांचिंग में लिखो लैटरल सल्कस, लैटरल सल्कस, जिसको हम सिल्वियन सल्कस भी बोलते हैं। बीच में लिखो लैटरल सल्कस और सिल्वियन सल्कस। लैटरल सल्कस की वजह से कौन से 2 लोब सेपरेट हुए हैं? हमारा टेम्पोरल और हमारा पैराइटल। सब जगह पैराइटल रहेगा, टेम्पोरल एंड पैराइटल। तो कान के ऊपर क्या है? टेम्पोरल, और ऊपर वाला पैराइटल। तो कान के ऊपर और एकदम ऊपर वाला हिस्सा, इन दोनों के बीच में कौन सा सल्कस है? लैटरल सल्कस। लैटरल मतलब जो साइड में है। ओके, लिखा। लास्ट वाले ब्रांचिंग में आप लिखोगे पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। नाम से ही समझ में आ रहा है किसको सेपरेट कर रहा है? हमारे ऑसिपिटल और हमारे पैराइटल को। मतलब हमारा जो ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा है और जो ऊपर वाला हिस्सा है, उन दोनों के बीच में भी एक डिप्रेशन है जिसको बोलते हैं हम पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। तो एग्जाम में अगर आया तो लिख सकते हो कि नहीं? वो आँख के पीछे वाला नहीं? Yes, I hope you can write down. एग्जाम में अगर आया कि राइट डाउन द 3 सल्कस
3 major sulcus or 3 deep sulcus of cerebral cortex. You can make 3 parts as central sulcus, lateral sulcus, parieto-occipital sulcus. Down to the central sulcus, you can write down it is separating the frontal and parietal lobe. Lateral sulcus or the sylvian sulcus is separating the temporal and the parietal lobe. And parieto-occipital is separating the parietal and the occipital lobe. Done? मिस ये आँख के पीछे वाला नहीं समझा. Next very important point. क्योंकि ये जो सल्कस है ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, मतलब एकदम पूरी तरह से वो अच्छे से पूरा कंप्लीटेड नहीं है. मतलब जैसे आप सोचोगे कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा. अभी मैंने अगर सेंट्रल सल्कस की बात की तो यू कैन सी वेयर द कर्सर, वेयर आई एम मूविंग द कर्सर, तो ये यहाँ पे होगा कहीं. यस, क्योंकि ये एकदम कंप्लीट डिप्रेशन नहीं होता है, तो हम ये जो लोब्स है दे आर नॉट क्लियरली, मतलब एकदम हम क्लियरली इसको डिमार्केट नहीं कर सकते फ्रॉम ईच अदर. यस, वेरी क्लियर. तो दिखने में सब ऐसे ही दिखेगा, बट जब हम उसको एकदम अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो हमें सारे सल्कस नजर आएंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, एक फिफ्थ मीडियन लोब होता है जिसको हम इंसुला बोलते हैं या फिर इंसुलर कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो कहां पर प्रेजेंट है, हमारे लैटरल सल्कस में प्रेजेंट है. इंसुला मीडियन लोब है, वो एक छोटा सा लोब है, called as the insula or the insular cortex. Now the side, this is the side view of the brain, side view of the brain. You can see this is the frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. This part is the corpus callosum, which is separating the two parts. See, this is the central sulcus, parieto-occipital sulcus, I have to teach you the ventricles also. Okay. Now next topic is the functional areas of cerebrum. Again, this is very, very, very important question. See, in the functional area of cerebrum, the functional areas of cerebrum are present in these 4 lobes: frontal, parietal, occipital and the temporal. तो हमारा जो फ्रंटल लोब है ना, उसमें 4 इंपॉर्टेंट एरियाज प्रेजेंट हैं: मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड द ब्रोकाज एरिया. फ्रंटल लोब में 4 एरियाज प्रेजेंट हैं. प्लीज नोट डाउन. In our frontal lobe, there are 4 important areas present: motor area, premotor area, association area and the Broca's area. मोटर एरिया क्या काम करता है फ्रंटल लोब का? सारा वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है. प्री मोटर एरिया सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. एसोसिएशन एरिया जो है वो कोऑर्डिनेशन करता है बिटवीन सेंसेशन एंड द मूवमेंट्स. And the next very important is the Broca's area. This is going to translate the thoughts into the speech. So whatever I am thinking, I am able to speak because of my Broca's area or the motor speech area. It is also called as a motor speech area. Because यहाँ पे सब motor areas present है इसीलिए. Again एक और चीज याद रखो कि सिर्फ फ्रंटल लोब में मोटर एरियाज है, बाकी के जो 3 लोब्स है वहां पे सेंसरी एरियाज है. प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट आल्सो. ओनली फ्रंटल लोब हैज मोटर एरियाज, बाकी के जो 3 लोब्स है उसमें सेंसरी एरियाज प्रेजेंट है.
So because यहाँ पे motor areas है, therefore this particular area is called as a Broca's area or the motor speech area, which is going to translate our thoughts into the speech. Let us come to the parietal lobe. As I've told you, the parietal lobe is having sensory area and association area. Temporal में भी sensory area, association area. Occipital में भी sensory area, association area. ठीक है? सब लोब का association area जो भी वो perceive करता है, उसको judging करने में या analyze करने में वो मदद करता है. जैसे कि parietal lobe का जो sensory area है, वो सेंसेशन ऑफ पेन करवाता है, प्रेशर कराता है, टेम्परेचर कराता है, टेस्ट कराता है. तो जो इसका जो एसोसिएशन एरिया है वो ये एनालाइज करेगा कि कैसा टाइप का पेन है, कैसा टाइप का प्रेशर है या कैसा टाइप का टेम्परेचर है. सेंसिंग इज डन बाय द पैराइटल लोब, बट एनालाइजिंग दैट इज बीन डन बाय द एसोसिएशन एरिया. गॉट इट? हेलो मिस. हाँ मिस, वो सोमैस्थेटिक सेंस क्या है? व्हाट? सोमैस्थेटिक सेंसेशन किधर है? ये बुक में लिखा हुआ है पैराइटल लोब के पॉइंट में. यस, आई एम कमिंग ना बेटा. पैराइटल लोब के. हाँ मिस. हाँ, तो दिस इज व्हाट इज द पेन, प्रेशर, व्हाट इज दिस? सोमैटोस्टैटिक ना. सोमा का मतलब क्या होता है बेटा? बॉडी, है ना? हाँ. So soma means body. Soma aesthetic sensation. Soma aesthetic sensation means controlling all the pain related to the body. Body से related जो भी है pain, pressure, temperature, ये सारी चीजें are coming in the soma part. That is a soma aesthetic sensation. Got it? Yes. And taste को gustatory बोलते हैं. Taste is also called as gustatory. Okay, next is the temporal lobe. टेम्पोरल लोब की अगर हम बात करेंगे तो ये किस चीज का सेंसेशन कराता है? स्मेलिंग, हियरिंग, स्पीच एंड इमोशंस. ठीक है? हियरिंग को ऑडिटरी भी बोला जाता है. स्मेल को अभी हमने पढ़ा था कि उसको ऑल्फैक्टरी भी बोला जाता है. तो है वही चीज बट अलग अलग नाम से बोला जा रहा है. जैसे हम बॉडी के ऊपर जो भी चीज है उसको हम सोमा बोलते हैं या फिर सोमा एस्थेटिक भी बोलते हैं. वैसे स्मेल को ऑल्फैक्टरी बोलते हैं, हियरिंग को ऑडिटरी बोलते हैं. ठीक है? सो टेम्पोरल लोब का बेसिकली काम क्या है? हाँ, सेंसिंग द स्मेल, हियरिंग, स्पीच. अगेन उसको एनालाइज करना. जैसे आपने स्मेल तो कर लिया, वो आपके टेम्पोरल लोब के सेंसरी एरिया ने कराया, बट वो स्मेल अच्छा था, बुरा था, कैसा था, दैट एनालाइज इज बीन डन बाय द एसोसिएशन एरिया. गॉट इट? ऑसिपिटल लोब. ऑसिपिटल लोब का काम क्या है? इट हेल्प्स इन विजन. विजन को क्या बोला जाता है? ऑप्टिक. यस, ऑप्टिक. सो विजुअल एरियाज, सेंस ऑफ विजन, and the association will perceive it ki what you are seeing. Got it all of you? Next, again a very important thing which has been not been mentioned in your book. पैराइटल एरिया में एक और एरिया होता है जिसको बोला जाता है वर्निक्स एरिया. वर्निक्स एरिया, WERNICK'. It is present basically in this parietal lobe. So this vernix area is also called as a sensory speech area. Sensory speech area. Yes, it is mentioned, I think so, in the next paragraph. Yes. Okay. Parietal lobe में there is a center called as a vernix area or the sensory speech area. It is also called as the intelligence center because it helps you in understanding जो भी मैं बोल रही हूँ ये आपको समझ में आ रहा है. It is because of your vernix area.
Whenever I'm telling you and whenever I'm dictating you, you're able to write it again because of this vernix area. When अगर देखो अभी मैं एक ही टाइम में मैं हिंदी में भी बीच में बात कर रही हूँ, मैं आपसे इंग्लिश में भी बात कर रही हूँ, मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रही हूँ फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, बट फिर भी आप समझ पा रहे हो, है ना, दो अलग अलग लैंग्वेज आप एक ही बार में समझ पा रहे हो, अगेन बिकॉज ऑफ दिस वर्निक्स एरिया. ठीक है. So vernix area is again a very important area called as a sensory speech area, which helps you in understanding whatever the सामने वाला person is speaking or writing everything. Got it? See, this is the spelling for that. In addition to this area, there is one more area of intelligence called as a vernix area, which helps in understanding of the spoken and the written words. Next is the basal nuclei. What is this basal nuclei? Basal nuclei is, as we have seen that हमारा cortex is made up of grey matter and medulla is made up of white matter. ठीक है. तो ग्रे मैटर के अंदर जब हमें व्हाइट मैटर नजर आता है तो उसे हम बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं, बेसल गैंग्लिया बोलते हैं. तो जब हमारे ब्रेन के कॉर्टेक्स में ऐसा नजर आता है, ग्रे के अंदर हमें व्हाइट नजर आता है, तो हम उसे बोलते हैं बेसल न्यूक्लियाई या फिर बेसल गैंग्लिया भी बोलते हैं. आर द ग्रे masses प्रेजेंट इन द व्हाइट मैटर. What does it has? It helps the cortex in execution of activities at subconscious level. तो जो भी कॉर्टेक्स के अंदर जो भी काम हो रहा है, एक्सिक्यूशन का मतलब है जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज हो रहा है सबकॉन्शियस लेवल में, वो उसको मदद करता है. Corpora striata, just now I've explained you, corpora striata is a ventrolateral part. Ventrolateral part at the floor of cerebrum. It is the largest basal nucleus. See, this is the one. Yes, corpora striatum. Yeah, corpora strata is the ventrolateral part. Yes, it is the floor of the cerebrum. It is the largest basal nuclei. Largest basal nuclei. So you can see all the things over here. You can see this rounded part as the vernix area, motor speech area. This is the central sulcus. You can take a screenshot of it, beta. This is the soma aesthetic association area. Soma aesthetic मतलब parietal lobe. सिर्फ फ्रंटल में मोटर प्री मोटर एरिया होता है, बाकी के सब जगह सेंसरी एरियाज होते हैं. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. Yes. So we will stop over here. Tomorrow we will be learning from diencephalon. Got it? Now homework for all of you is to draw the diagram which has been given